बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है होल नंबर्स। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग होल नंबर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स, डिवीजन एल्गोरिथम, पैटर्न्स. In this chapter we will learn about whole numbers, but first have a look at some characteristics of natural numbers. Now, natural numbers. Natural numbers are the numbers 1, 2, 3, 4, 5 which are used for counting. We denote natural numbers by n. The number 1 is the smallest natural number, as counting can go on endlessly. There is no greatest natural number, and we say that the number of natural numbers is infinite. Now next is whole numbers. All natural numbers together with 0 are called whole numbers, such as 0, 1, 2, 3, 4. Whole numbers are denoted by W. There is no last whole number. Also, 0 has no predecessor. Representation of whole numbers on number line. A line is endless on both its sides, but the whole numbers start from 0 on one side and extend endlessly on the other side. So, we show the whole numbers by a number ray. Number ray is a part of the number line. The whole numbers start from 0 and extend at equally spaced point to the right side of 0. तो ये हमारी नंबर लाइन है, ठीक है। ये रे है हमारी, दोनों साइड से देखो एरो है, 0 से स्टार्ट होता है और इसको हम एंडलेसली इनफाइनाइट नंबर तक एक्सटेंड कर सकते हैं. वी सी दैट द होल नंबर विच लाइज टू द राइट ऑफ अनदर होल नंबर ऑन द नंबर लाइन इज ग्रेटर. हर एक नंबर के राइट साइड में जो नंबर है वो उसके लेफ्ट साइड वाले नंबर से क्या है? ग्रेटर है, बड़ा है. नो इट. All natural numbers are whole numbers, but all whole numbers are not natural numbers. 0 is the first and the smallest whole number. Every whole number has a successor which can be found by adding 1, and every whole number except 0 has a predecessor which can be found by subtracting 1. Now next is operations on whole numbers on the number line. Operations on whole numbers can be shown on the number line. Addition on the number line. We can show the addition of whole numbers on the number line. Let us show the addition of 3 and 5. ये हमारी नंबर लाइन है यहाँ पे, ठीक है। नंबर लाइन है 0 से लेके 16 तक. हमें 3 और 5 को ऐड करना है. 3 और 5 को क्या करना है? ऐड करना है. तो पहले हम 3 में 5 को ऐड करेंगे. तो 3 तक हमारा एरो गया. 3 में हमें 5 ऐड करना है. तो 3 के बाद 5 नंबर काउंट करो. 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8. वी रीच एट 8. हम कहाँ पहुंचे? 8 पे. द पॉइंट एट द टिप ऑफ द एरो इज 3. To add 5 to 3, we make 5 jumps of 1 unit each to the right. From 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7 and 7 to 8 as shown above. The tip of the last arrow in the 5th jump is at 8. So, the sum of 3 and 5 is 8. That is 3 plus 5 is equals to 8. Now next is subtraction on the number line. Subtraction is an inverse operation of addition. Let us subtract the whole number 4 from the whole number 7. कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? देखो, हमें 4 को सब्ट्रैक्ट करना है 7 में से. तो हम 0 से लेके 7 पे, 7 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट. यहाँ पे हमें 7 में से सब्ट्रैक्ट करना है कितना? 4. तो 7 पे गए, राइट. 7 के बाद हम बैक जंप लेंगे. कितने? 4 बैक जंप. तो 7 से हम पहुंचे 6 पे, फर्स्ट जंप, सेकंड जंप 5, थर्ड जंप 4 एंड फोर्थ जंप एट
3। तो हम जब हमने बैक साइड में 4 जंप लिए, वी रीच एट 3। हम कहां पहुंचे? 3 पे। The point at the tip of the arrow is 7. Start from 7 to subtract 4. Move towards left with 1 jump of 1 unit. Make 4 such jumps. We reach the point 3. We get 7 minus 4 is equals to 3. Now next is multiplication on the number line. Let us multiply two whole numbers 3 and 5. Multiplication is a short way of adding a number again and again. Multiplication को हम क्या बोलते हैं? रिपीटेड एडिशन ना, सेम नंबर को हम क्या करते हैं? ऐड करते रहते हैं. इट इज अ रिपीटेड एडिशन. तो हमें 3 और 5 का क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन करना है. तो हम क्या करेंगे? यहाँ 0 से फर्स्ट हमारा 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मीन्स 3 यूनिट्स के 5 जंप करने हैं. तो फर्स्ट जंप पे हम पहुंचे 3 पे. नाउ अगेन 3 का सेकेंड जंप किया 6 पे, थर्ड जंप पे 9, फोर्थ जंप पे 12 और फिफ्थ जंप पे वी रीच एट 15. स्टार्टिंग फ्रॉम 0 मूव 3 यूनिट्स एट अ टाइम टू द राइट. मेक 5 सच मूव्स. वी विल रीच एट 15. सो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 15. नाउ डिवीजन ऑन द नंबर लाइन. Division is an inverse operation of multiplication. Let us divide the whole number 16 by the whole number 4. Division is a short way of subtracting a number again and again. Division क्या है? Repeated subtraction. It is a repeated subtraction. तो यहाँ पे हमें नंबर लाइन पे हमें किसको? 16 को डिवाइड करना है. कितने से? 4 से. तो हम 16 से स्टार्ट करके 4 लेफ्ट साइड में जंप लेंगे. फर्स्ट जंप पे वी रीच एट 12, सेकेंड जंप पे वी रीच एट 8, थर्ड जंप पे वी रीच एट 4 एंड फोर्थ जंप पे वी रीच एट 12. स्टार्टिंग फ्रॉम 16 मूव 4 यूनिट्स एट अ टाइम टू द लेफ्ट. मेक 4 सच मूव्स. वी रीच एट 0. सो 16 इज डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 4. तो इस तरह से बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स. Now we shall learn fundamental properties of whole numbers. These properties are very helpful in solving the questions. Now properties of addition. First is closure property. The sum of any two whole numbers is also a whole number. For example, 12 plus 13 is equals to 25. 12 is also a whole number. 13 is also an whole number and their sum is also a whole number. So two whole numbers का sum is always a whole number. It is a closure property. Property 1. If A and B be any two whole numbers, then A plus B will also be a whole number. Now second is commutative property. The sum of any two whole numbers remains the same whatever be the order of numbers. For example, 23 plus 17 is equals to 17 plus 23. चाहे आप 23 plus 17 करो या 17 plus 23 करो, बोथ सिचुएशन में हमारा टोटल कितना है? 40. इट इज अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. मीन्स हमने क्या किया? ऑर्डर चेंज किया बट सम विल रिमेन सेम. नो इट. Whole numbers are commutative under addition and multiplication. Property 2 में हमने क्या देखा? If A and B be any two whole numbers, then A plus B is equals to B plus A. कि हम चाहे A plus B करें और B plus A करें. Means हमने क्या किया? ऑर्डर चेंज किया. दोनों ही सेम रहेगा. Now third, associative property. The sum of 3 or more whole numbers remains same even the grouping of numbers is changed. For example, under bracket 8 plus 5 bracket close plus 7 is equals to 8 plus under bracket 5 plus 7 bracket close. हमने क्या किया? पहले हमने इन दोनों की ग्रुपिंग की, प्लस 7 अलग रखा, फिर हमने 8 को अलग रखा, 5 प्लस 7 की ग्रुपिंग की. बट दोनों ही सिचुएशन में पहले हमने 8 प्लस 5 13 प्लस 7, यहाँ पे 8, 5 प्लस 7 इज
12, राइट, बट दोनों ही सिचुएशन में आंसर विल बी 20। तो हमारी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हमारे पास 3 होल नंबर्स है तो उनकी हम ग्रुपिंग कैसे भी करें, आंसर विल बी सेम। नो इट, द वर्ड एसोसिएटिव कम्स फ्रॉम एसोसिएट विच मीन्स ग्रुप। प्रॉपर्टी 3 क्या है, इफ ए बी एंड सी कैन बी any 3 whole numbers then a plus b under bracket plus c is equals to a plus under bracket b plus c। that means कि हम इनकी ग्रुपिंग पहले दोनों नंबर्स की थर्ड से करें या लास्ट के दोनों नंबर्स की फर्स्ट के साथ करें, आंसर विल बी सेम। नाउ फोर्थ इज additive identity. If 0 is added to any whole number, the sum remains the number itself. For example, 17 plus 0 is equals to 17, 284 plus 0 is equals to 284. That means किसी भी whole number में अगर आप 0 add करेंगे, the answer, the sum is the number itself. Property 4, if a be any whole number, then a plus 0 is equals to a. Know it, additive identity does not exist for natural numbers because 0 is not a natural number. Now example 1. Find the sum of 8, 37, 208 and 363 by suitable grouping. सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरह से ग्रुपिंग करेंगे कि हमारा जो सम है, जो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, वो इजी रहे। तो यहाँ पे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, सुटेबल ग्रुपिंग ऑफ गिवन नंबर्स। तो यहाँ पे इस तरह से ग्रुपिंग करो कि 100, 10 मतलब जीरोज में आए। तो हम देखेंगे 7 + 3 = 10, तो हम इन्हीं की ग्रुपिंग कर देते हैं। 837 + 363 को हमने अंडर ब्रैकेट रखा प्लस 208। 837 + 363 को जब हमने ऐड किया तो एक सिंपल सा नंबर आया, दैट इज 1200। अब इजी रहेगा उसमें 208 ऐड करना, दैट इज 1408। तो ये हमने क्या की, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मींस इस तरह से ग्रुपिंग करो कि हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा जो सॉल्यूशन है वो इजी रहे, आपको ज्यादा पेन पेंसिल प्लस माइनस ना करना पड़े, आप ओरली प्लस माइनस कर पाए, राइट। तो इसी तरह से एग्जांपल 2 देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ 1962, 453, 1538 एंड 647 बाय सुटेबल ग्रुपिंग। सॉल्यूशन करते हैं। इसमें भी हम वही सेम ग्रुपिंग देखेंगे, किस किस को प्लस करने पे 10, 100 इस तरह से बन रहा है। तो देखो हम वंस प्लेस को ट्राई करेंगे। वंस प्लेस को देखो, यहाँ पे हमारा क्या है, 2 है, यहाँ पे 8 है। 8 + 2 = 10, रेस्ट ऑफ 2 नंबर्स में 3 and 7 10। तो इन्हीं की ग्रुपिंग कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे की 1962 + 1538 अंडर ब्रैकेट प्लस 453 + 647 अंडर ब्रैकेट। इसमें हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज की। फर्स्ट दोनों को ऐड किया, दैट इज 3500, लास्ट के दोनों को ऐड किया, दैट इज 1100। देखो आप खुद देखोगे कितना इजी रह गया। 0, 0, 100, 10, 1000 वाली डिजिट्स को ऐड करना थोड़ा इजी रहता है। दोनों को ऐड किया, बिना पेन पेंसिल उठाए आप ओरली ऐड कर सकते हो, दैट इज 4600। नाउ नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। This property does not exist for subtraction. It is necessary that the difference of 2 whole numbers is always a whole number. It exists only when A is greater than or equals to B. For example, 12 minus 3 is equals to 9. Since 12 is greater than 3, but 3 minus 12 is equals to -9. It is not a whole number. इसलिए हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती सब्ट्रैक्शन में। Second is commutative property. This property does not exist for subtraction. For example, 20 minus 12 is not equals to 12 minus 20. आपने क्या किया, ऑर्डर चेंज किया। 20 minus 12 कितना आया हमारा, 8, एंड 12 minus 20 -8। दोनों इक्वल नहीं है, एक प्लस है और एक माइनस है। सो a माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू b माइनस a, इसलिए हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। थर्ड इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। दिस प्रॉपर्टी डज नॉट एग्जिस्ट फॉर सब्ट्रैक्शन। 25 माइनस अंडर ब्रैकेट 18 माइनस 10 इज नॉट इक्वल्स टू अंडर ब्रैकेट 25 माइनस 18 ब्रैकेट क्लोज माइनस 10। यहाँ पे हमारे दोनों ही सिचुएशन में आंसर क्या है, डिफरेंट है। एक में 17 आ रहा है, एक में -3। सो a
minus under bracket b minus c is not equals to a minus b under bracket minus c. Now fourth is identity element. If 0 subtracted from a whole number, then result is the number itself. For example, 28 minus 0 is equals to 28. 379 minus 0 is equals to 379. So a minus 0 is equals to a. तो इस तरह से बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन. फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी. The product of any two whole number is also a whole number. For example, 8 multiplied by 12 is equals to 96. तीनों ही whole number हैं, 8 भी, 12 भी and 96 भी. इसलिए subtraction में हमारी closure property applicable है. Property 1, if A and B be any two whole numbers, then A multiply B is also a whole number. Now second is commutative property. The product of any two whole numbers remains the same whatever be the order of the number. For example, 11 multiplied by 8 is equals to 8 multiplied by 11. दोनों ही situation में हमारा multiplication कितना है? 88. So property 2 is if A and B be any two whole numbers, then A multiplied by B is equals to B multiplied by A. ये हमारी property applicable means आप order change करो, answer will be same. Now third is associative property. The product of three or more whole numbers remains same whatever be the order of the numbers. For example, 8 multiplied by under bracket 5 multiplied by 12 is equals to under bracket 8 multiplied by 5 multiplied by 12. Means आप grouping कैसे भी करो, answer will be same 480. So property 3 is if A, B and C be any three whole numbers, then A multiplied by under bracket B multiplied by C is equals to under bracket A multiplied by B multiplied by C. कि आप कैसे भी grouping करो, answer will be same. Now fourth is multiplicative identity. The product of any whole number and 1 is the number itself. For example, 89 multiplied by 1 is equals to 89. 327 multiplied by 1 is equals to 327. So property 4 is if A be any whole number, then A multiplied by 1 is equals to A. अगर हम किसी भी whole number को 1 से multiply करेंगे, the answer is the number itself. Now fifth is multiplicative property of 0. The product of any whole number and 0 is always 0. For example, 57 multiplied by 0 is equals to 0. 1276 multiplied by 0 is equals to 0. So property 5 is if A be any whole number, then A multiplied by 0 is equals to 0 multiplied by A is equals to 0. Means चाहे 0 से whole number को multiply करो या whole number को 0 से करो, answer will be 0. Now sixth is distributive property of multiplication over addition. Let 10, 15 and 18 be three whole numbers. Then 10 multiplied by under bracket 15 plus 18 is equals to, ये हमारी क्या है? Distributive property of multiplication over addition. That means क्या है? 10 हमारे पास तीन numbers हैं 10, 15 and 18. 10 multiply by under bracket क्या है? 15 plus 18. 15 plus 18. That means multiplication over addition. कि multiply भी हो रहा है और under bracket क्या है? Addition है. तो हम क्या करेंगे? इस multiplication को इन दोनों नंबर से 1 by 1 क्या करेंगे? Multiply करेंगे. तो 10 multiply by 15, क्योंकि बीच में प्लस है इसीलिए बोला गया है ओवर एडिशन, तो बीच में हम क्या लगाएंगे? प्लस. नाउ 10 मल्टीप्लाई बाय 18. 10 मल्टीप्लाई बाय 18 तो हमारा क्या हो जाएगा? अगर हम इसको डायरेक्टली करेंगे तो भी 10 मल्टीप्लाई बाय इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा? 33. तो भी हमारा आंसर 330 आएगा. अलग अलग करेंगे देखो 150 प्लस 180 तब भी हमारा आंसर कितना आएगा? 330. तो ये हमारी क्या है? Distributive property of multiplication over addition.
तो प्रॉपर्टी 6 क्या है? इफ A, B and C be any 3 whole number, then A multiply by under bracket B plus C is equals to A multiply by B under bracket plus under bracket A multiply by C. ये हमारी क्या है? Multiplication over addition. Now 7th is distributive property of multiplication over subtraction. यहाँ पे क्या है हमारी? Multiplication over subtraction. अब प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस. लेट 20, 18 and 16 be 3 whole numbers. Then तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने? 20 मल्टीप्लाई बाय 18 माइनस 16. यहाँ पे वहां प्लस था, यहाँ पे ओवर एडिशन में प्लस था, यहाँ पे माइनस है. तो सेम डायरेक्ट भी जब हम आप इसको सॉल्व करेंगे 20 मल्टीप्लाई बाय 18 माइनस 16 इज 2, तो भी हमारा 20 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 40. अलग अलग करोगे इसी तरह से करेंगे. 20 18 से मल्टीप्लाई किया, बीच में क्योंकि माइनस है ओवर सब्ट्रैक्शन, तो बीच में हमारा माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय 16, तो हमारा कितना हो जाएगा? 360 माइनस 320, तो भी हमारा आंसर कितना आएगा? 40. तो ये हमारी क्या बनी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन. तो इसमें हमारी जो प्रॉपर्टी बनेगी, प्रॉपर्टी 7, वो क्या बनेगी? इफ A, B and C be any 3 whole numbers, then A multiply by under bracket B minus C is equals to under bracket A multiply by B minus under bracket A multiply by C. Now example करते हैं इनसे related. Example 3. Find the product of the following by suitable rearrangement. Solution करते हैं. First is 8 मल्टीप्लाई बाय 1247 मल्टीप्लाई बाय 25 इज इक्वल्स टू. इसमें भी हम मल्टीप्लीकेशन में क्या देखेंगे? किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें कि 10, 100, 1000 में बने. तो 8 और 25 को जब हमने मल्टीप्लाई किया 200 बना. तो यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यूज किया, तो हमने इन दोनों की पेयरिंग कर ली या ग्रुपिंग कर ली. 1247 मल्टीप्लाई बाय अंडर ब्रैकेट 8 मल्टीप्लाई बाय 25 using associative property is equals to 1247 multiply by 8 और 25 को मल्टीप्लाई कर दिया that is 200 and दोनों को मल्टीप्लीकेशन किया 0 0 एज इट इज 2 से मल्टीप्लाई कर दो 1247 को, तो कितना आ जाएगा? 24940. सेकेंड पार्ट में भी देखो किन दो का ग्रुपिंग करें कि जो हमारा मल्टीप्लीकेशन है वो 100, 1000 इस तरह से आए. तो हमने 135 मल्टीप्लाई बाय 8, 40 multiply by 27. Using associative property, 135 multiply by 8 is equals to 1080 and 40 multiply by 27 is also 1080. दोनों को multiply किया 11,66,400. Now example 4. Find the product of the following using suitable properties. Solution करते हैं. 645 मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो 64500 और इसको 8 से किया 5160 और दोनों को ऐड कर दिया, आंसर इज 69660. हमने यहाँ पे सिंपली क्या किया है? 108 को 100 प्लस 8 को डिस्ट्रीब्यूट किया है. 108 को 100 प्लस 8 में. सेकेंड पार्ट देखो इसका क्या है? 375 मल्टीप्लाई बाय 195. अब 100 प्लस 95 तो करेंगे नहीं, हम क्या करते हैं? 200 माइनस 5 इजी वे करेंगे. तो ये क्या हो गया हमारा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन. यहाँ पे एडिशन लिखा है, ये क्या है हमारा? सब्ट्रैक्शन. हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. तो हमने 375 मल्टीप्लाई बाय 200 एंड माइनस, क्योंकि हमने बीच में माइनस लगाया 200 माइनस 5, तो बीच में माइनस 375 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई किया 75,000 माइनस 1875 माइनस करेंगे 73125. नाउ एग्जाम्पल 5. A man bought 10 kg of apples at the rate of rupees 87 per kg. 10 kg of oranges at the rate of rupees 54 per kg. And 10 kg of grapes at the rate of rupees 109 per kg. How much did he spend in all? Solution करते हैं इसका. टोटल कॉस्ट ऑफ फ्रूट्स इज इक्वल्स टू ₹10 मल्टीप्लाई बाय 87. यहाँ पे देखो सबकी क्वांटिटी 10 kg है, प्राइस अलग अलग है, तो क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस किया है. तो 10 मल्टीप्लाई बाय 87 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 54 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 109. ये हमारा 10 kg एप्पल्स रेट क्या है? 87 रुपीज प्लस
10 kg ऑफ ऑरेंजेस मल्टीप्लाई बाय 54, ये ऑरेंजेस का, प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 109, ये हमारा ग्रेप्स का। तो सब में 10 10 10 कॉमन है, 10 को हमने बाहर लिया और यहाँ पे हमने क्या किया, क्वांटिटी को कॉमन ले लिया। सबकी क्वांटिटी कितनी है 10 10 kg मल्टीप्लाई बाय सबके प्राइस को ऐड कर दिया, 87 प्लस 54 प्लस 109, सबको ऐड किया, दैट इज 250। 250 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल्स टू 2500 रुपीज का टोटल स्पेंड किया उसने। नाउ नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। Closure property does not exist in division because it is not applicable for every two whole numbers. For example, 17 is divided by 17 is equals to 1 whole numbers. But 17 is divided by 5 is equals to 17 by 5, not a whole number. ये हमारा whole number नहीं है, तो ये property हमारी division पे applicable नहीं है. Second is commutative property. Commutative property does not exist in division. For example, 30 is divided by 10 is not equals to 10 is divided by 30. क्योंकि 30 को 10 से करेंगे 3, but 10 is divided by 30 is equals to 1 by 3. So A is divided by B is not equals to B divided by A. तो हमारी commutative property भी applicable नहीं है. Third is associative property. Associative property does not exist in division. For example, under bracket 18 divided by 6 is divided by 3 is not equals to 18 divided by under bracket 6 divided by 3. क्योंकि यहाँ पे देखो 18 divided by 6 is 3, 3 is divided by 3 is 1. 18 divided by under bracket 6 is divided by 3 is 2 and 18 divided by 2 is 9. सेम आंसर नहीं है, 1 is not equals to 9. So A divided by B under bracket is divided by C is not equals to A divided by under bracket B divided by C. Now fourth is division by 0. Division of any whole number by 0 is meaningless, that is not defined. For example, 12 is divided by 0 is equals to not defined. So A divided by 0 is equals to not defined. Not defined कैसे, देखो चेक कर लो, 0 से करेंगे तो 0 0 0, क्योंकि 1 पे आएगा ही नहीं, 0 0 जा 0, 0 1 जा 0, क्योंकि किसी भी 1 से करोगे तो भी 0, 2 से करोगे तो भी 0. So it is not defined. Know it. Whole numbers are not closed, commutative and associative under division. Now fifth is 0 divided by a whole number. If 0 is divided by any whole number except 0, it gives 0. For example, 0 is divided by 84 is equals to 0. 0 is divided by 723 is equals to 0. So 0 is divided by any whole number, that is A is equals to 0. Now sixth is property of 1. Any whole number divided by 1 is the number itself. For example, 78 is divided by 1 is equals to 78. 129 is divided by 1 is equals to 129. So, A is divided by 1 is equals to A. किसी भी whole number को 1 से divide करोगे, the answer is the number itself. Now, seventh is a number divided by itself. Any whole number divided by itself except 0 gives 1. किसी भी नंबर को आप whole number को same number से divide करेंगे तो answer will be 1 except 0. Now division algorithm. If a whole number is divided by a non-zero whole number, there exists a quotient and a remainder such that dividend is equals to divisor multiplied by quotient plus remainder. डिविडेंड जिसको हमें डिवाइड करना है इज इक्वल्स टू डिवाइजर जिससे डिवाइड करना है मल्टीप्लाई बाय कोशेंट इज द आंसर प्लस रिमाइंडर जो बचा है. द फॉर्मूला गिवन अबव इज कॉल्ड डिवीजन एल्गोरिथम. और ये जो फॉर्मूला है इसको क्या बोला गया है? डिवीजन एल्गोरिथम. एग्जाम्पल से करते हैं. एग्जाम्पल 6.
Divide 5737479 by 68 and check the result by division algorithm. Solution करते हैं इसका. 68 से हमने डिवाइड किया, 68 8 जा 544 माइनस किया दैट इज 29, 7 ब्रॉट डाउन किया, 4 पे गया 272, 25 रिमाइंडर, 4 ब्रॉट डाउन किया, 3 पे गया 204, नाउ 57 ब्रॉट डाउन किया, 7 पे गया 476, 31 इज द रिमाइंडर, 9 ब्रॉट डाउन किया, 4 पे गया 272 एंड जो बचा लास्ट में, क्योंकि हमारे नंबर्स वहां पे खत्म हो गए हैं, 47 इज द रिमाइंडर. इट इज द रिमाइंडर एंड इट इज द क्वोशिएंट. बीच में जिसको डिवाइड किया है दैट इज द डिविडेंड और जिससे हमने डिवाइड किया है दैट इज डिवाइजर. ठीक है, अब इसको चेक करेंगे. हमारे पास क्या है एल्गोरिथम? डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. तो वही हमने किया, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इज 47. जब हमने मल्टीप्लाई करके ऐड किया दैट द आंसर इज 5737,479 दैट इज इक्वल्स टू द डिविडेंड. तो ये हमारा क्या है? आंसर करेक्ट है. तो इस तरह से बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे. Now next is patterns. In earlier classes we have seen that natural or counting numbers possesses various patterns. In this section we shall learn about various patterns possessed by whole numbers. We shall also learn about the formulation of rules by identifying these patterns. Following table shows the representation of dots of होल नंबर्स. यहाँ पे एक हमें टेबल गिवन है जिसमें एलिमेंट्री शेप्स, नंबर एंड रिप्रेजेंटेशन. फर्स्ट है हमारा लाइन. लाइन में हमारा 2 नंबर्स हैं तो 2 डॉट्स, 3 नंबर्स हैं 3 डॉट्स, 6 नंबर हैं 6 डॉट्स. नेक्स्ट इज रेक्टेंगल. अगर हमें रेक्टेंगल फॉर्म करना है 6 नंबर हैं तो हम 3 3 के ग्रुपिंग कर देंगे, 3 3 3 3 3 3. ठीक है, 3 ऊपर 3 नीचे, तो हमारा रेक्टेंगल बनेगा. 8 होगा तो 4 4 डॉट्स लगाएंगे, 10 होगा तो हमारा 5 5 डॉट्स लगेगा. तो ये बनेगा हमारा रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल हमारा इसी शेप में होता है. राइट. नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर. स्क्वायर में हमेशा स्क्वायर नंबर आएगा. जैसे हमारे पास क्या है 4 तो 2 2 डॉट्स, 9 9 में 3 3 डॉट्स, 16 में 4 4 डॉट्स. इस तरह से स्क्वायर में हमेशा हमारा स्क्वायर नंबर रहेगा. नेक्स्ट हमारा क्या है ट्राइंगल. ट्राइंगल में 3 है तो 3 डॉट्स. इस तरह से 6 है तो 3 3 और बीच में 1, 6 हो जाएंगी. और 10 है तो इस तरह से 1 2 3 4 1 2 3 4 और इस तरह से हम ट्राइंगल को फॉर्म कर सकते हैं. किसमें? डॉट्स के थ्रू. नाउ नो इट. ईच नंबर कैन बी अरेंज्ड एज अ लाइन. Numbers having same factors can be arranged as squares. For example, 3 multiplied by 3 is equals to 5 multiplied by 5, etc. Numbers having different factors can be arranged as rectangles. For example, 6 is equals to 3 multiplied by 2, 10 is equals to 5 multiplied by 2, etc. Prime numbers can only be arranged as a line except 3. Now next is use of patterns in calculations. Observe or study the pattern. A. 1 multiplied by 8 plus 1 is equals to 9. 12 multiplied by 8 plus 2 is equals to 98. 1 2 3. अब यहाँ पे हम इसको 12 पढ़ रहे हैं, पर ये क्या है? काउंटिंग है. 1 मल्टीप्लाई बाय, सबको 8 से मल्टीप्लाई किया है और आगे काउंटिंग नंबर्स को ऐड किया है. 1 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 1 इज 9. 1 2 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 2 इज 98. अब 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 987. यहाँ पे भी 9 9 8 9 8 7. अब नंबर्स क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं. 9 8, 9 के बाद 8 आया, 8 के बाद 7. नाउ 1 2 3 4, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 4 तो 9 8 7 6. यहाँ पे भी हमारा नंबर क्या हो रहा है? किस में है? डिसेंडिंग ऑर्डर में. नेक्स्ट क्या है? 1 2 3 4 5. 5 नंबर्स हैं, मल्टीप्लाई बाय 8 और 5 को ही हमने ऐड किया है, तो यहाँ पे 9 8 7 6 5. We can see that increasing of number and value of digits, so we can write next 2 steps in the flow of
पैटर्न। कैसे करेंगे, नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 6 है तो यहाँ पे 6 तो हमारा क्या आ जाएगा 9 8 7 6 5 4 क्या आ जाएगा 4। नेक्स्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 के बाद 7 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 7 तो यहाँ पे भी 9 8 7 6 5 4 के बाद 3। इस तरह से ये पैटर्न हमारा यहाँ फॉलो हो रहा है। देखो नेक्स्ट यही किया है 6 और ये 7 वाला। नाउ बी पार्ट, we can find how the pattern works. 1 2 is equals to 1 1 plus 1. नेक्स्ट क्या है 1 2 3 4 4 है लास्ट तो 4 यहाँ पे ये 3 आएंगी 3 2 एंड 1 1 2 3 4 5 तो 5 है लास्ट नंबर तो 5 से ही स्टार्ट करेंगे 5 1s प्लस 4 1s 3 1s 2 1s एंड 1। इस तरह से इस पैटर्न को हम वी इजिली राइट द नेक्स्ट नंबर इन द अबव पैटर्न 1 2 3 4 5 6 6 है तो यहाँ पे 6 5 4 3 2 1। नेक्स्ट में 1 2 3 4 5 6 7 तक है तो 7 से स्टार्ट करेंगे 7 6 5 4 3 2 1 उतने ही 1 1 हम प्लस प्लस करते जाएंगे। वी कैन कंबाइन द अबव टू पैटर्न्स इन A and B. Now patterns in multiplication. We calculate only till we see a pattern. Then we fill in according to the pattern. Read and observe from top to bottom. 131 multiplied by 1 1 is equals to 1441. 131 multiplied by 1 1 1 तो 14541 means ascending then descending. 131 multiplied by 1111 145541. 131 multiplied by 1111 145541. 5 को इंक्रीज कर रहे हैं मतलब 5 के काउंटिंग बढ़ रहे हैं जैसे जैसे 1 की काउंटिंग बढ़ रही है। यहाँ पे 131 मल्टीप्लाई बाय 111111 इज इक्वल्स टू 14555541. एवरी प्रोडक्ट हैज 14 इन द बिगिनिंग and 41 in the last. Number of the digit 5 increases gradually. इसी तरह से यहाँ पे देखो 101 multiply by 2 is 4 times 2. 101 multiply by 222 is 2 2 4 2 2. Again 101 multiply by 222 is equals to 2 2 4 4 2 2. Again 101 multiply by 2 2 2 2 5 times 2 is equals to 2 2 4 times 4 2 2. 101 1 2 3 4 5 6 6 times 2 is equals to 2 2 multiplied by 4 times 4 or 2 2. Every product has 22 in the beginning and in the last. Beginning में भी 22 और last में भी 22. Number of the digit 4 increases gradually. The famous pattern in multiplication is repeated multiplication having all digits 1. ये सबसे famous pattern है। 1 1 multiply by 1 1 is equals to 1 to 1. 3 times 1 multiply by 3 times 1 is 1 2 3 2 1. 3 times है तो 1 2 3 2 1s. 4 times 1 है तो 1 2 3 4 3 2 1. 5 times 1 है तो 1 2 3 4 5 and 4 3 2 1. मीन्स जितने टाइम्स हमारा 1 है उतने टाइम्स हमारी काउंटिंग जाएगी। 1 2 3 4 5 तक गई 5 then 4 3 2 1. 2 digit 2 in the center, 3 digits 3 in the center, 4 digits 4 in the center, 5 digit 5 in the center. Following the pattern we can write the multiplication for any number of digits. यहाँ पे हमारा 7 टाइम्स है तो काउंटिंग कहाँ तक गई 7 तक 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1. 7 digit 7 in the center. Now pattern in the division. Observe the pattern. 9 minus 1 is divided by 8 is equals to 8 divided by 8 is equals to 1. 98 divided by 2 is divided by 8 is equals to 96 divided by 8 is equals to 1 2. 987. अब यहाँ पे देखो पैटर्न 9 98 987 minus 3. काउंटिंग नंबर्स हमारे माइनस हो रहे हैं और इधर से काउंटिंग क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। सबको 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 96 987
9872। तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, इसको माइनस करके 8 से कर रहे हैं तो हमारे काउंटिंग नंबर्स आ रहे हैं। फर्स्ट 9 minus 1 8, 8 is divided by 8 is 1, 98 minus 2 is 96 divided by 8 is 1 2, 987 minus 3 is 987 divided by 8 is 1 2 3, 9876 minus 4 is 9872 divided by 8 is 1 2 3 4। तो यहाँ पे 987 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 984 आएगा। एंड तो वहाँ पे भी हमारे क्या है, ये काउंटिंग नंबर्स है 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4। फॉलोइंग द पैटर्न वी कैन राइट, ऐसे ही इस पैटर्न को आगे बढ़ाया, 98765 माइनस 5 इज डिवाइडेड बाय 8, तो डायरेक्ट काउंटिंग लिख देंगे 1 2 3 4 5। नेक्स्ट क्या है 98764 माइनस 4 divided by 8 is equals to 1 2 3 4 5 6. Know it. In the case of division among whole numbers, 8 is divided by 2 is equals to 4. This means that a whole number 8 when divided by a whole number 2 gives an answer 4, which is also a whole number. Then why do we say that closure property does not hold true for division of whole numbers? फिर भी हम क्या बोलते हैं कि डिवीजन प्रॉपर्टी में क्या नहीं करता, हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है। तो ये आप ट्राई करो सम अदर नंबर्स और फाइंड आउट करो। नाउ शॉर्टकट इन ऑपरेशंस। ए, टू ऐड नंबर्स ऑफ द फॉर्म 9 99 999 1753 plus 999 is equals to 1753 plus 1000 minus 1। हमने इसका क्या कर दिया, इसमें 1 प्लस किया और उसमें से 1 माइनस कर दिया। मतलब इसमें क्या कर दिया हमने, सब्ट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी लगा दी। ठीक है, तो 1753 प्लस 1000 माइनस 1, तो यहाँ पे हमारा 1753 में 1000 को ऐड किया, 2753 में से 1 माइनस कर दिया। इस तरह से हम यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ, जैसे 999 है तो 1000 में से 1 माइनस कर दिया। ठीक है, बी पार्ट देखो, टू सब्ट्रैक्ट नंबर्स ऑफ द फॉर्म 999 999 कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, ये तो एडिशन था, ऐड कैसे किया हमने, 1000 में से 1 माइनस किया, 1000 ऐड कर दिया, फिर 1 माइनस कर दिया। राइट, अब सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी वैसे ही हमने किया, माइनस करना है 999, उसमें से क्या किया हमने, माइनस 1000 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा, 1000 में से 1 माइनस 1000 में से 1 प्लस करेंगे तो 999 आ जाएगा। तो अब 3536 में से 1000 माइनस किया, कितना बचा, 2536, और उसमें 1 प्लस कर दिया 2537। राइट, नाउ सी पार्ट क्या है, टू मल्टीप्लाई नंबर्स ऑफ द फॉर्म 999 999 456 मल्टीप्लाई बाय 999, तो यहाँ पे भी 999 को क्या कर दिया इन्होंने, 1000 माइनस 1 कर दिया और उसको 456 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे भी 456 मल्टीप्लाई बाय 1000 माइनस 456 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 456000 माइनस 456, इसको इजीली माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद हमारा कितना आया, 455544। नाउ डी पार्ट इज to multiply a number divisible by 2 or 4 or 8 by a number of the form 5 or 25 or 125. 62 multiplied by 5 is equals to 62 multiplied by 10 by 2. 5 को कैसे लिख दिया, 10 by 2 is equals to 62, तो यहाँ पे 2 कैंसिल कर दिया, 31 multiplied by 10 is equals to 310. 52 multiplied by 25, 25 को कैसे लिख सकते हैं, 100 by 4, 100 by 4, 4 से कैंसिल कर दिया 52 को, दैट इज 13, 13 multiplied by 100 is equals to 1300. 56 multiplied by 125, 125 को कैसे लिखा, 1000 divided by 8, 8 से 56 को कैंसिल किया, 7, 7 multiplied by 1000 is equals to 7000. तो इस तरह से बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ समरी, काउंटिंग नंबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल नंबर्स एंड आर डिनोटेड बाय n. The whole numbers are the collection of natural numbers along with 0. Every whole number has a successor.
Every whole number has predecessor except 0. The closure commutative and associative property true for only addition and multiplication of whole numbers. 0 is the additive identity and 1 is the multiplicative identity of whole numbers. Division of whole numbers by 0 is not defined. तो बच्चों, आई होप आपको चैप्टर समझ आया. इसकी रिवीजन आप खुद कीजिए.